आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। श्री अकाल तख्त साहब के पूर्व जत्थेदार व तख्त श्री दमदमा साहिब के मौजूदा जत्थेदार सिंह सब ज्ञानी हरप्रीत सिंह आज अमृतसर श्री दरबार साहब मांझी साहब दीवान हॉल में पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के कार्यवाहक जत्थेदार भाई गुरुदेव सिंह काउंग के जो 1993 में तत्काल अधिकारियों द्वारा कोको के जगराओं में शहीद हो गए थे और तब से यह उनकी धर्मपरायण पत्नी का महान बलिदान है, जिन्होंने भाई साहब की अनुपस्थिति में बच्चों को पाला और हर साल उन्हें याद किया जाता है। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह अखंड पाठ साहब का संचालन करने वालों ने कहा कि 1990 में सिखों के उत्पीड़न के दौरान 1 लाख से अधिक युवा शहीद हुए थे और पिछले 25 वर्षों से भाई गुरुदेव सिंह कोके की रिपोर्ट अलमारियों में धूल फांक रही है और को कम से कम उस प्रचारित रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को उचित सजा देनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि सबसे जघन्य आतंकवाद राजकीय आतंकवाद है और यह राजकीय आतंकवाद था जिसमें लाखों युवा शहीद हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह को आक्रामक होकर बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने जो लिखा सही लिखा जी। ये तो उन्होंने पूछो ना, मैंने तो कोई चर्चा चल रही है। देखो रिपोर्ट 31 साल बाद सरदार भाई गुरदेव सिंह जी कौंके ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਜਨੀਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਫਸਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਭਜਨੀਕ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਲਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਕੌਂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਵਾੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2097 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਖਾਲੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਨੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਭਜਨੀਕ ਰੂਹ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ पूरे देश में बस चालक और ट्रक चालक हड़ताल पर हैं। देश का पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया है। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले ये बताएं कि जिस व्यक्ति की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, अगर वो वहां रुकता है और जनता उसे पीटती है तो वहां वो रुकेगा या अपनी जान बचाकर भागेगा। हैवाना ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जनता कानून को अपने हाथ में ना ले, इसके लिए पुलिस प्रशासन को अपना काम देखना चाहिए। अगर जनता उस ड्राइवर को पीटती है तो जनता और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वाना ने कहा कि भारत सरकार ने 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, यह बिल्कुल गलत है। वाना ने कहा कि अगर कोई दुर्घटना के दौरान घटनास्थल से भाग जाता है तो यह बहुत गलत है। सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, जो भी ड्राइवर उसे अस्पताल ले जाता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह भी गारंटी देनी चाहिए कि यदि ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो जनता उसे दंडित नहीं करेगी, वो कानून के तहत जिम्मेदार होगा। दुर्घटना नशे में धुत ड्राइवर के कारण होती है या जब कोई आवारा जानवर सामने आ जाता है। यदि किसी जानवर के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिनके पास जानवरों की देखभाल करने का कर्तव्य है, और सभी ड्राइवरों से ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर सरकार ने कुछ करना है तो 2 चीजें कर दे। अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद रुकता है तो उसकी सुरक्षा सरकार करे, और अगर जानवर से एक्सीडेंट होता है तो जानवर संभालना जिनकी ड्यूटी है उनको दंड भी दे, उनको जुर्माना भी करे। अदरवाइज ये ड्राइवर जो बस चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर और सभी ड्राइवर भाई बंधुओं, आपसे भी एक निवेदन है कि जो आंदोलन कर रहे हो वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, और पुलिस वालों से भी ये कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा बल्कि बल प्रयोग उनको ड्राइवरों पर करना ही नहीं चाहिए। उनका संघर्ष रोटी के लिए है, रोजी के लिए है, जीवन के लिए है, और ड्राइवर भाई बंधुओं ये शांतिपूर्ण आंदोलन करें। और भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने हिट एंड रन कानून में संशोधन करके ये कानून बनाया है उनको कहो पुनर्विचार करें, ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल। अगली खबर, बस्सी पठाना में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में बाबा खाटू श्याम जी का पहला संगीतमय संकीर्तन और विशाल भंडारा श्री श्याम बालाजी परिवार और सभी शहरवासियों के सहयोग से करवाया गया, जिसमें शहर बस्सी पठाना और आसपास के शहरों से आए श्रद्धालु नतमस्तक हुए और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के हल्का विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने विशेष तौर
तौर पर हाजिरी लगवाई और इस अवसर पर भजन गायक राजीव राजा पटियाला वाले और उनके साथ माधव रहेजा पटियाला वाले ने बाबा खाटू श्याम जी के भजन गाकर सभी श्रद्धालुओं को निहाल किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हल्का विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने नए साल की बधाई देते हुए बताया कि ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी संगत का प्यार और श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है और संगत बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से इस समारोह में नतमस्तक हो रहे हैं। बाबा खाटू श्याम जी का यह संकीर्तन के अलावा धार्मिक समारोह बस्सी पठाना में होना चाहिए, जो कि आपसी भाईचारा को इकट्ठा करने का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा तहत और तीर्थ और गुरुधामों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। शहर बस्सी पठाना के सभी श्रद्धालुओं को बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करवाने का भरोसा दिलवाया। राजेश मित्तल श्री श्याम बालाजी परिवार के सदस्यों की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि श्री बाबा खाटू श्याम जी का यह संकीर्तन बस्सी पठाना में पहली बार करवाया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। बस्सी पठाना में धार्मिक कार्य में लोगों की आपस में भाईचारा देखने को मिलता है और भगवान श्री कृष्ण जी के अनेकों समारोह होते हैं। सभी लोग शहर बस्सी पठाना को मिनी वृंदावन के नाम से जानने लग गए हैं। सब तो पहला तो नवे साल दियां बहुत बहुत मुबारकां ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ कि हजे भी संगत के आने की लड़ी जी टुट नहीं रही। सो ये प्यार है प्रभु जी के प्रति, भगवान जी के प्रति, खाटू श्याम जी के प्रति। सो मैं सारी मैनेजमेंट का धन्यवाद करदा ते मैं चाहुंदा अगों भी इदां दे प्रोग्राम होंदे रहन। एक मैं होर इन्हां नूं बेनती करूँगा कि आपां सारे एक बारी कहंदे तुसीं दर्शन कीते, मैं कहा मैं तां नहीं कीते, तुहाडे जरूर करावांगे जी ते बस भी जरूर आपां इत्थों लैके जावांगे। सो बड़ी जल्दी बस लैके जावांगे। सो जिन्नी भी संगत जाना चाहूगी वो बस दे विच आपां लैके जावांगे। मुख्यमंत्री जिहड़ी मान साहब ने यात्रा तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू कीती है ਉਹਦੇ थ्रू आपां जरूर लैके जावांगे। तो सारिਆਂ ਨੂੰ फिर तो बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तुहानूं तुसीं भी भरा हो, साडे सारे खड़े हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। आपां ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ नहीं पिछले समय दौरान कर पाए, कोई कमियां रह गई 2023 च, आप 24 च वो काम जिहड़े पूरे करिए। साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा। वहीं अगली खबर, राज्यसभा मेंबर डीपी वत्स ने भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को जागरूक किया और केंद्र की तरफ से दी जा रही स्कीमों के संबंध में भी अवगत करवाया। इस मौके पर हल्का इंचार्ज डॉक्टर दीपक ज्योति ने कहा कि आज प्रदेश भर के गांव में चल रही भारत संकल्प यात्रा व आज प्रदेश के गांव में केंद्रीय मंत्रियों के आने का एक उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं, जो निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यसभा मेंबर मेजर जनरल डीपी वत्स ने कहा कि केंद्र सरकार की 150 के करीब वेलफेयर स्कीम जन कल्याण योजना लोगों के लिए है, जिनकी जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जैसे किसान सम्मान निधि, जन कल्याण योजना, आयुष्मान व अन्य योजनाओं
समस्याओं के प्रति लोगों को अवगत किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को यहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जानना चाहिए, व हल करना चाहिए। पंजाब की झांकी न शामिल करने पर भी उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के मंत्री खुद की फोटो लगा झांकी को शामिल करवाना चाहते थे, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा वीरबाल दिवस भी मनाया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसे लोगों को याद रखना चाहिए और भाजपा का साथ देना चाहिए। इसके अलावा नौजवानों को भी नशे से दूर रहकर केंद्र की तरफ से दी गई स्कीमों का लाभ लेने के लिए प्रेरित करके अपना भविष्य संवारने के लिए कहा। इस मौके पर भाजपा के सीनियर लीडरशिप दीदार सिंह भट्टी, जिला प्रधान हल्का इंचार्ज डॉक्टर दीपक ज्योति, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरबंस लाल, सपोकस मेन कुलदीप सिंह, सिद्धुपुर मंडल प्रधान राजीव, ओम गौतम मल्होत्रा, सरपंच नायब दक्षता सरपंच प्रभजोत, दक्षता प्रवा, सोहन लाल मैनरो, संदीप गुप्ता आदि ने राज्यसभा मेंबर डीपी वत्स का सम्मान किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा भारी संख्या में गांव के बाशिंदे व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मोटिव ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दी करीब 150 के करीब वेलफेयर स्कीम है मोदी जी की जन कल्याण योजनाएं। उन स्कीमां दा ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन कि लोगों को लाभ कितना मिलता है ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, और उनका ऑन द स्पॉट जो कंप्लेंट्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनका निवारण करने के लिए। कि रूल तो ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कंसर्न्ड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, हेल्थ दा आयुष्मान, जन औषधि योजना, इसी तरह किसान सम्मान निधि, वो सारे महकमे इत्थे होने चाहिए। हुण कोई समस्या है पेट्रोल दी पंजाब विच कुछ नहीं आ सके, उसका सेंटर का बंदा आए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आए, वो आके समाधान करे लोगों की समस्या का, तो उनका ऑन दी स्पॉट इम्प्लीमेंटेशन यही है। सर, एक कानून पास हुआ है आज पंजाब में, सारे पेट्रोल पंपों पे तेल वगैरह की शॉर्टेज आ रही है। उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं है। सर, एक 26 जनवरी को पंजाब की झांकी नहीं, फिर से दोबारा फिर पता लगा कि पंजाब की झांकी जो 26 जनवरी में दिखानी है वो नहीं दिखाई जा रही। लास्ट ईयर हरियाणे की झांकी नहीं सीगी, उन्हों का अपना रूल होता है। वो पंजाब की झांकी इसकी है कि इत्थे पंजाब भी दिल्ली भी, वो लास्ट ईयर वाली झांकी अपने मुख्यमंत्री का फोटो लगा के तो झांकी नहीं बनती ना पंजाब की प्रोग्रेस। सर, शहीदों दी ਜਿਹੜੀਆਂ फोटोआं लगाई गई सी, शहीदों की फ़ोटो लगाई गई थी और ऐसा था। सर, एक तरफ तो वीर बाल दिवस मनाया गया है 26, 27, 28 को, और दूसरी तरफ 26 जनवरी को जो झांकी हटा दी गई है पंजाब की तरफ से, काफ़ी रोष है। चलो, मैं कहना वीर बाल दिवस जो लगाया है वो बहुत बड़ी चीज़ है, सारे संसार नूं दिखाण वास्ते, सुनाण वास्ते कि वीर बाल दिवस लोगों को पता ही नहीं सीगा। वो तो नेहरू जी का वो बाल दिवस मना लेंदे सीगे जन्मदिन उन्हां दा 14 नवंबर का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी, 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी, और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाई। अगली खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। ड्राइवरों की हड़ताल के बाद लगातार पेट्रोल पंप पर तेल की कीमतों के डर से लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। वहीं कई लोग तो इस बीच बाल्टी से तेल लेकर गाड़ियों में खुद डालते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि अगर यह हड़ताल लंबी चली तो उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी व काम पर जाने के लिए वे गाड़ियों में तेल फुल करवा रहे हैं,
और वहीं पेट्रोल पंप मैनेजर रॉबिन वर्मा ने बताया कि हड़ताल लंबी नहीं चलेगी, 3 जनवरी तक हड़ताल है और शायद हड़ताल कल खत्म हो जाए, इसलिए लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी से 1 से 2 दिन का तेल पेट्रोल पंप पर मौजूद है और लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लगातार वो तेल कंपनियों के संपर्क में हैं। कोई लाइन लगी हुई चौक से, वहां से मुड़ता हुआ है, मैंने तो अपने आप ही बाल्टी ली, मैंने खुद ही डाल लेते हैं और क्या करें। लाइन लगी परेशानी तो बहुत ज्यादा है जी। अब 3-4 दिन अगर देखो किसी ने बाहर जाना, इमरजेंसी है, कुछ भी है, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है ना। अभी तक तो बताया जा रहा है कल तक हड़ताल है, लेकिन कई जगह खबर फैली है कि 7 तक है। 3-4 दिन तो देखो मिनिमम है ही। सरकार एकदम तो पीछे से हट नहीं रही, टाइम तो लगेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, तो इसीलिए पहले करके चल रहे हैं अभी। अब क्या करें, काम तो देखो करने हैं ना, सबने करने हैं, इमरजेंसी बाहर भी जाना है, सब कुछ है, मजबूरी है। अगर तेल नहीं मिलता तो क्या परेशानी आने वाली? परेशानियाँ गाड़ियाँ सारी घर रह जाएगी, बंदा कहाँ जाएगा, साइकिल भी आएगा, फिर इमरजेंसी भी हो सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, घर में 100 प्रॉब्लम है, ठंड का सीजन है। तो फिलहाल कितना तेल आपने गाड़ी में डलवाया? मैंने 25 लीटर डलवाया, अभी तो 3 दिन तो चल जाएंगे कम से कम, उसके बाद फिर देखेंगे। विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम। अगली खबर, घर से काम की तलाश में निकले एक व्यक्ति की फैजपुर में सड़क हादसे के दौरान मृत्यु हो गई। बता दें, प्रतापनगर क्षेत्र के फैजपुर में एक सड़क हादसे के दौरान विकास राठी नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विकास राठी की उम्र लगभग 33 वर्ष थी और वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि विकास राठी अपनी बाइक को लेकर घर से काम की तलाश में निकला था, क्योंकि जहां वह पहले काम कर रहा था उसका काम छूट चुका था। जैसे ही वह फैजपुर के पास पहुंचा तो एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। विकास राठी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के लोग अब न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि विकास राठी एक बहुत ही गरीब परिवार से था और घर पर और भी कोई कमाने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसे में परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। गाँव सालापुर, उम्र 31 साल। इसका एक्सीडेंट हुआ, पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि आपके लड़के का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइवर और गाड़ी हमने बरामद कर ली। उसकी सूचना पर यहाँ आए हम। इसमें अस्पताल में खिदराबाद हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। किस चीज़ पे था ये बाइक पर था। कब चला था घर से? घर से चला था ये कल चला, परसों चला था घर से जी। अच्छा, क्या आया था? ये कह रहा था कि नौकरी तलाश में जा रहा है। मैं जो पहले नौकरी करता था वहाँ से नौकरी छूट गई थी, इसके प्राइवेट नौकरी करता था ये। उम्र कितनी है? 31 साल। शादीशुदा है? शादीशुदा है जी, 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 12 साल की, एक लड़का है 4 साल का। तो ये एक्सीडेंट कब हुआ? ये कल हुआ जी। कितने बजे? लगभग 4 बजे करीब। 4-5 बजे करीब। किस चीज़ के साथ हुआ? ये गाड़ी है जो थाने में मौजूद है अभी। हाँ जी, होंडा मेज। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा हमने। अच्छा। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हो? भाई यही चाह रहे जी, गरीब आदमी है, इसकी मदद हो, कानूनी कार्रवाई हो उसमें। ड्राइवर के खिलाफ उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई, लापरवाही से एक्सीडेंट कराया उनने गफलत में आके। ये अपनी साइड में था, जो पता लगा वहाँ सूचना मिली मौके पे। ये अकेला ही था? 30 साल उम्र है। एक कार वाले ने एक्सीडेंट करा जी, टक्कर मारी सीधी। कार्रवाई कर दी, मुकदमा दर्ज कर दिया, आज पोस्टमार्टम कराने के लिए आया। क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं सर, मुलजम गिरफ्तार नहीं, गाड़ी मिल गया, गाड़ी मौके से बरामद हो गई थी, वो थाने में खड़ी है जी। अच्छा। हाँ जी।
सूचना पुलिस द्वारा ये दी गई थी कि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में खोले जा रहे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अंबाला शहर के किंगफिशर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एवं सांसद कार्तिक शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए और खोले जा रहे केंद्र के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहले हर काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था और केवल एक एम्स था, लेकिन मोदी जी ने हर प्रदेश में एम्स बना दिए हैं और इस समय देश भर में लगभग 350 मेडिकल कॉलेज बना दिए गए हैं। इसी तरह एनसीबीसी की लैब केवल दिल्ली में थी और सभी को टेस्ट के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अनेकों प्रदेशों में एनसीबीसी लैब का उद्घाटन किया है। अंबाला के नगनर गांव में इसका सेंटर बनेगा। जो टेस्ट आम अस्पतालों में नहीं हो पाते, वे टेस्ट यहां पर होंगे। इस लैब में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सहित 5 राज्यों को यहां से जोड़ा जाएगा। दिल्ली जाना पड़ता था, एक एम्स था, अब मोदी जी ने हर प्रदेश में एम्स बना दिए, लगभग 350 मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। उसी प्रकार से एनसीडीसी की लैब केवल दिल्ली में थी, सबको दिल्ली जाना पड़ता था। अब देश के अनेकों प्रदेशों में एनसीडीसी लैब का आज उद्घाटन किया गया है। इसमें अंबाला में भी 90 गांव में जमीन ले ली गई है और केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। वहां पर ये सेंटर बनेगा और वो सारे टेस्ट जो हमारे अस्पतालों में, जहां आम लेबोरेटरियों में नहीं हो पाते हैं, वो सारे टेस्ट इन एनसीडीसी सेंटर्स में होंगे और इसमें रिसर्च वर्क भी होगा कि जो बीमारियां हो रही है, नई नई बीमारियां आ रही है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। जल्दी ही हमने सबसे बात की है अधिकारियों से, जल्दी ही इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा और ये जो अंबाला का सेंटर बनेगा, ये आसपास के 5 प्रदेशों को ये यहाँ से सर्विस मिला करेगी। हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, ऐसे 5 प्रदेश जो है वो टेस्ट कराने के लिए अंबाला छावनी आया करेंगे। बहुत ही अच्छी और सराहनीय शुरुआत है हेल्थ डिपार्टमेंट और माननीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी और हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी द्वारा। मैं मानता हूं कि जो आपत्तिक ये वैश्विक महामारी जैसे कोरोना आई या फिर ऐसी कोई भी आपदा आती है तो बता के नहीं आती है। आप कितने तैयार होते हैं और किस तरीके से उसका सामना करते हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण कोविड में भारत सरकार ने दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमने देखा जहां पर पश्चिम में किस तरह से उनकी हालत पस्त हो गई थी कोविड के दौरान, हमारी सरकार ने दुर्गम परिस्थितियों में भी उसका सामना बड़ा डट के किया। और जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं तब ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जा रहा है कि कभी ऐसी आपदा आए या दिक्कतें आए तो एक सुचारू रूप से उसका व्यवस्थित तरीके से उसका समाधान निकल सके। और जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि अब ऐसी कोई भी डिजीज आएगी तो सारी इंटीग्रेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, उसकी जानकारी सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगी ताकि समय से हर चीज की कार्रवाई हो सके।
कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट अंबाला क्षेत्र के अंदर आता है तो पूरे क्षेत्र को तो फायदा मिलता ही है, व्यवसाय आता है, लोगों को रोजगार मिलता है, बिल्डिंग बनती है, प्रोजेक्ट बनता है, नौकरियां मिलती हैं, तो उसका तो पूरे अंबाला क्षेत्र को फायदा मिलेगा और ये तो 5 राज्यों को इसका फायदा मिलेगा, आसपास के 5 राज्यों को। तो जिस तरह से अंबाला में प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से। अगली खबर, हरियाणा के पटवारी 3 दिवसीय हड़ताल पर पे स्केल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। करनाल में भी पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो हमारे पहले डिमांड थी उसे सरकार ने मान भी ली थी, मानने के बाद भी सरकार ने उसको 2016 से लागू कर दिया और फिर दोबारा उसी लेटर को उन्होंने 2023 से लागू कर दिया। उनकी मुख्य मांग है कि उसको 2016 से लागू करें ताकि उसका उन्हें फायदा मिले। पहले ही पटवारी उतने पर आए हुए हैं और इसका किसी को फायदा नहीं होगा। हमारी जायज मांग है और इसको पूरा किया जाए। और पटवारियों की काफी कमी है करनाल में, 153 के करीब पोस्ट है और 50 पटवारी काम करते हैं। एक पटवारी 3 पटवारियों का काम कर रहा है। वर्कलोड भी ज्यादा है। दिन रात हम काम करते हैं। हम पब्लिक को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देते, फिर भी सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये चेतावनी पटवारियों की तरफ से दी गई। दिनों में जैसा कि आपको पहले बताया, उसी की वजह से जो पहले हमारी डिमांड थी वो डिमांड सरकार ने मान भी ली थी, लेकिन मानने के बाद भी सरकार ने पहले तो उसको 2016 से लागू कर दिया, फिर बाद में उसी लेटर को दोबारा उस पर लगा के पर्सपेक्टिवली लगा के उसको 23 से लागू कर दिया। हमारी मेन डिमांड तो है भी उसको 2016 से लागू करें ताकि जो किसी को फायदा भी है। 23 से लागू करने में किसी पटवारी को फायदा नहीं। उस स्केल पे पहले ही पटवारी इतने पे आए हुए हैं, 3200 पे, 31,000 कुछ पे, 200-400 का फायदा होता है, किसी को फायदा ही नहीं होता। और यही डिमांड है। और दूसरी जो डिमांड है मतलब स्टेट कार्यकारिणी की भी इस बारे FCR को भी पहले मिले। FCR साहब ने भी यही आश्वासन दिया था कि भाई आपकी डिमांड ठीक है और इसको हम लागू कराएंगे। राज्य कार्यकारिणी ने कहीं बार खुल्लर साहब थे, उनसे मिले, उससे पहले भी FCR साहब थे, सब ने आश्वासन दिया भाई आपकी जायज़ डिमांड है और हम CM साहब से बात करके वो करेंगे। अब हमारा तो CM साहब से यही आपके माध्यम से है कि हमारी जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए। और दूसरी बात है कि पटवारियों की कमी इतनी है। करनाल में 153 के करीब पोस्ट हैं और 50 पटवारी काम करते हैं। एक पटवारी 3 पटवारियों को काम कर रहा है। वर्कलोड इतना है, दिन रात काम करते हैं, फिर भी पब्लिक को हम परेशान नहीं होने देते, लेकिन फिर भी सरकार को इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। पदम कुमार, जिला प्रधान, पटवार कॉन्वोकेशन करनाल। अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर पतंजलि हनी।
अगली खबर, करनाल का व्यापारी संजय गावा अपने दुकान के नौकर के साथ अपनी कार में सवार होकर सुबह करीब 7:30 बजे करनाल से दिल्ली की तरफ निकला था। ITI चौक पर खड़े दो युवकों ने उससे दिल्ली जाने के लिए लिफ्ट मांगी तो संजय ने उन्हें कार में बिठा लिया। हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर सफर करने के बाद मधुबन के पास दोनों बदमाशों ने व्यापारी और उसके नौकर की कनपट्टी पर बंदूक तान दी और कार चला रहे संजय का गला दबाने का प्रयास किया। बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और व्यापारी की टांग में गोली मार दी। इसके बाद बदमाश कार को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कार के डैशबोर्ड में 2.5 लाख की नकदी रखी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद व्यापारी संजय गावा के भाई सुनील गावा और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। सुनील ने बताया कि संजय और उनकी दुकान का नौकर दिल्ली से सामान लाने के लिए निकले थे। ITI चौक पर दो लड़कों ने कार में लिफ्ट मांगी और मधुबन के पास जाकर गोली मारकर उनके भाई को घायल कर दिया और 2.5 लाख की नकदी और कार लूटकर फरार हो गए। सुनील ने बताया कि गोली लगने से उनके भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और CIA की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और दुकान के नौकर से भी पूछताछ की। उसने बताया कि दोनों बदमाशों की उम्र करीब 25 साल की होगी और दोनों के पास पिस्टल थी, जिसमें से एक बदमाश गोली मारने के बाद अपनी बंदूक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। डायल 112 के इंचार्ज जसबीर सिंह ने बताया कि उन्हें कार लूटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। थाना मधुबन प्रभारी ने बताया कि बदमाशों ने लिफ्ट लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश लूट के बाद कार को हाईवे के टोल से लेकर नहीं भागे बल्कि गांव के रास्ते से फरार हुए हैं। पुलिस की कई टीम उनकी तलाश में जुट गई है। ऐसी घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए। लोगों से अपील है कि अनजान लोगों को लिफ्ट ना दें। हमारे पास सूचना मिली थी भाई यहाँ वारदात होगी। वारदात के संबंध में हम यहाँ आए थे तो पता चला कि भाई यहाँ गाड़ी छीन ले गए दो बदमाश लड़के। तो वो ITI चौक पर ये लड़के जो जिनका गोली लगी है, ये इन्होंने जाना था दिल्ली स्पेयर पार्ट का सामान लेने के लिए और ये यहाँ गाड़ी छीनने की कोशिश करी है। उनके हाथापाई हुई है और जो ड्राइवर ने गाड़ी ना दी थी उसने फायरिंग कर दी तो उसमें पैर में गोली लगी है उसके। तो नकदी कितनी बताई जा रही है जी? है जी, नकदी कितनी गाड़ी में बताया कैश नकदी के बारे में अभी कुछ नहीं है। इस तरह से अक्सर लिफ्ट लेके इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस क्या कुछ संदेश देगी? हम तो संदेश बार बार देते हैं भाई अनजान आदमी को ना बैठाएं गाड़ी में। ऑन रोड के ऊपर थे, ITI चौक पर थे, ITI चौक पर बैठाने की क्या जरूरत थी? नरी बस चलती है वहाँ। तो सुनील जी कैसे क्या इंसिडेंट हुआ है? ऐसा ही तकरीबन ये 7:30 बजे करीब बस स्टैंड के पास से निकले हैं। ITI दिल्ली जा रहे थे। हाँ। तो ITI चौक से तरफ से निकले हैं तो किसी ने हाथ दिया तो रोक ली उन्होंने गाड़ी। भाई ये हमने भी दिल्ली जाना, हमें छोड़ दोगे। तो उनको बिठाया तो यहाँ आगे खड़ी के पास इन्होंने जाके पहले हाथ गर्दन दबा लिया और थोड़ी हाथा बजी लिया, फिर टायर पर गोली मार के गाड़ी चली। आपकी गाड़ी में कौन थे? मेरा भाई था और दुकान का लड़का था। क्या नाम है उनका? संजय। तो गोली किसको लगी है? भाई के पैर पे मारी। कैश वगैरह लेके गए हैं? कैश भी है। गाड़ी कौन सी थी? टाटा जस्ट। और छीन के फरार हो गए। अभी कंडीशन कैसी है जिनको गोली लगी है? अभी तो गोली पहननी है अपना अमृतधारा में। नाइल शैम्पू pH balanced with natural ingredients यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स BB Pro फेस क्रीम दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH balanced with natural ingredients यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स BB Pro फेस क्रीम दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 यमुनानगर के
जिला लघु सचिवालय के बाहर पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर दिया जा रहा है सरकार के खिलाफ धरना। 32,100 रुपए वेतन 2016 से लागू की जाने की प्रदर्शन कर्मियों की द्वारा की जा रही है मांग। यमुनानगर के जिला लघु सचिवालय के बाहर आज से नगर पटवारी एवं कानूनगो 3 दिवसीय हड़ताल को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी एवं पटवारी स्टेशन के जिला प्रधान रामफल ने बताया कि पहले इन्होंने 35,400 रुपए वेतन की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि 32,100 रुपए की घोषणा की गई थी। सरकार उस घोषणा को 2023 से लागू करना चाहती है, लेकिन हमारी मांग है कि घोषणा को 2016 से लागू किया जाए। इस मांग को लेकर आज से 3 दिवसीय हड़ताल की शुरुआत की गई है। मांगे पिछले साल हमने जनवरी में धरना प्रदर्शन किया था, जिसको बाद में हड़ताल का रूप ले लिया और 4 जनवरी 2023 को सीएम साहब ने हमारे जो स्टेट प्रधान हैं उनको और कार्यकारिणी को हरियाणा भवन दिल्ली में बुलाकर मीटिंग की और उसमें आश्वासन दिया कि जो आपकी 35,400 की डिमांड है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका वेतनमान 25,500 से बढ़ाकर 3200 कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा है और 26 जनवरी 2023 से पहले आपको खुशखबरी दे दी जाएगी। तो सीएम साहब ने 24 जनवरी को ही इसके बारे में खुशखबरी दे दी और उन्होंने 3200 का नोटिफिकेशन जारी करा दिया, जो 1/1/16 से नौसलेली लागू किया गया और उसका 1/1/16 से 23 तक हमें कोई एरियर की ना ही हमारी डिमांड थी, ना ही सरकार ने इसको किया। एरियर की अब भी हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन 1/1/16 से 24/1/23 तक नौसलेली लागू किया जाए और उसके बाद जो आज तक बनता है अधिसूचना के बाद उसका हमें एरियर दिया जाए। यही हमारी डिमांड थी, इसको मान लिया था। लेकिन एफडी के अधिकारियों ने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार है उसमें 9/2/2023 को एक और लेटर निकाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको नोशनली ना देके पर्सपेक्टिवली दिया जाएगा, जिससे कि हमारे किसी भी पटवारी को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि कुछ पटवारी उस वेतनमान में पहले से ही चल रहे हैं, उनकी तो और इससे डाउन जा सकती है। तो इसलिए हमारी डिमांड यही है कि जो पहले लेटर निकाला था वह बिल्कुल सही था और जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था उस लेटर से ही वो पूरे होते हैं, लेकिन जो दूसरा लेटर है वो वादा खिलाफी है और उससे हमारे पटवारियों को बहुत भारी नुकसान है। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी, और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले एक टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बना ये प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि 1 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।